Hi everyone, I am Rachna Pandey and I am here. Why? Yes, I'm here for a very special announcement for you all that from today onwards I'm going to start an English speaking course. Yes, and this spoken English course will help you to enhance your English speaking skills. Yes. So, what is the pattern of going English course? How many days it will take, and how you will learn? That is the another question. So, I'm going to tell you the answer. That yes, this course will take 27 days, and in these 27 days, you will learn all the basics and important knowledge of English grammar, English language, and you will enhance your speaking capability and you will get the confidence to speak English properly. So, how it goes? I'm going to start this course from very beginning, like the sounds, then after the alphabets, and then the very basic structure of the sentences. What are the sentences? How we frame it? Then what are the types of sentences? Then we will move forward for the determiners, and then gradually we will understand what are part of speeches, and then move forward to the tenses. The basic question, मैम ग्रामर इम्पॉर्टेंट है क्या इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए? Many of tutors, many of speakers says that grammar has no role in English speaking, but in my opinion it's important. You can't ignore grammar. Why? Because English is not our native language. It is our second language. It's a language which we learn from somewhere. It is not our expressionful language. So that's why आप जब किसी चीज़ को लर्न करते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है. जैसे कि अगर एक बच्चा है वो ब्रिटेन या अमेरिका में पैदा होता है तो उसके लिए एक्सप्रेशन की लैंग्वेज ही इंग्लिश है. तो वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीखता है, तो उसको ग्रामर लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि सेम वे अगर हम हिंदी, बंगाली या मलयाली या तेलुगु, तमिल कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो वो हमारी एक्सप्रेशन की लैंग्वेज होती है. हमारे माँ बाप, हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं, सब वही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम ग्रेजुअली वो लैंग्वेज अपने आप लर्न कर लेते हैं. नो नीड ऑफ ग्रामर दैट टाइम. बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लिश, it is not our native language. So that's why whatever we have learnt in our childhood, मतलब आप जो भी हैं, अगर आप बड़े हैं तो आपने बचपन में भी इंग्लिश पढ़ी हुई है. You know some basic grammar, that people know some grammar part, but they are not able to apply that grammar portion in their speaking, and that's why they are hesitate. When many of times you have seen people started English but they stopped. Why? Because they thought कि शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे अभी के लिए क्या यूज़ करना होगा, आगे के लिए क्या यूज़ करना होगा, पीछे की बात करनी है, पास्ट की बात करनी है तो क्या यूज़ करना होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें कि सेकेंड फॉर्म यूज़ करें. और इन सारे कन्फ्यूजन से पीपल स्टॉप और पीपल इंटरप्ट देयर प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश. वाई? बिकॉज ऑल दीज थिंग्स मेक confusion in their mind. So with the help of this spoken English course, I just want to help you to understand this basic structure of English. Yes, and then after, when you understand all these basic structure, then you will follow all those small sentences. You will follow all those grammar rules in the small sentences, and then after gradually, it's not only about spoken English, it's writing skills also may be improved. Okay, so of this spoken English course, this spoken English course is not only for a spoken English, but it will create you how you to think in English. It will make you very capable to write in English also. So be ready to understand this global language. I think you understand what is the importance of English and how you will learn English through this channel. It will not only enhance your spoken English skills, but it will also give you idea how to write correct in English. So I hope it will help you a lot, and with the thought of this,
यही सोचते हुए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। और स्टार्टिंग में हम पहले वेरी बेसिक साउंड्स और उनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये सीखेंगे। उसके बाद ग्रेजुअली हम इसको 3 या 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे बेसिक पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। कि जब हमने बोला व्हेन द सब्जेक्ट इज दिस वन, सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में। when I say this is a question type of sentence and you will add this one and this object, so you should understand कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो इसकी एक प्रॉपर ग्लॉसरी है, जो एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। इट्स अ लैंग्वेज वी वांट टू लर्न फ्रॉम समवेयर, सो दैट्स वाई जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमें पता होनी चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो साइंस है या कोई और सब्जेक्ट है, तो हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो वी कांट अवॉइड ग्रामर व्हेन वी वांट टू लर्न इंग्लिश। और अगर हमें सही इंग्लिश बोलनी है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वेरी फेमस एसेइस्ट सेज, फ्रांसिस बेकन सेज दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यस, एंड आई बिलीव इन इट। इफ यू प्रैक्टिस देन यू विल परफेक्ट। So with this beautiful quote, I just want to start our first lecture, day 1. Its introductory portion is very long one, but I hope it's very important to tell you all those things what I think. Okay, so this is now over. There is no introduction, it's already completed. 2 more things I would just want to say, that these videos will cover only 10 to 15 minutes longer. Okay, so it will not very long video, 30 to 35 minutes long. It will cover only 10 to 15 minutes per day. Okay, and I just want to give my best to cover all those topics in these 15 minutes. So this is all about the length of the video. Now I just want to say it, the language of learning is not every time English, because I know that you love your Hindi language also, and I also love to speak somewhere in Hindi. So that's why we will learn this language with bilingually. You can learn English through Hindi. Yes, so I hope it will help you a lot. And from this quote, I just start this course day 1. Okay, so let's get started. So one very basic thing, when we speak whatever language, we produce some sounds, okay, and these sounds make the language. How is it? Sounds makes letter, letter makes words, words make sentences, and sentences make language. Yes, I hope it's very clear to you. So a letter in English, a letter represents a speech sound. English में एक letter जो होता है A या B या C, वो एक speech sound को refer करता है, ठीक है। और as you know that there are 26 letters in English alphabet. So don't confuse between letter and alphabet. Letter और alphabet अलग अलग है नहीं। Alphabets totally letters के combination को बोलते हैं, यानी A to Z all alphabets. Yes, और उनके अंदर अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो है वो हमारे लेटर्स आते हैं ABCD to Z. Yes, so ABCD को इंडिविजुअली हम लेटर बोलेंगे, जैसे कि हम स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और कैपिटल अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं। येस, आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। सो जब हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो इट मीन्स कि जो ABCD है वो स्मॉल लेटर वाली होगी, और कैपिटल लेटर्स मीन्स कैपिटल लेटर्स में। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर। अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स एक नहीं है, अल्फ़ाबेट्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आई होप इट्स वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वॉल साउंड। अब वॉल साउंड क्या होते हैं? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। Vowel sounds are the sounds, like in Hindi we have a, e, u, e, o, ang, ah. In the same way, English language have only 5 vowel sounds. Vowel sounds मतलब स्वर, जिनमें स्वर की स्पेशलिटी क्या होती है कि स्वर बोलते वक्त हमारा जो एयर पैसेज होता है सिर्फ वही वर्क करता है। हमारे जो टंग है, हमारा टीथ है, हमारा जो लिप्स है वो टच नहीं करता है, डायरेक्ट वो हमारे एयर से निकलता है, जैसे आ,
पर अगर हमें ब बोलना है तो ब, तब हमारा जो लिप्स है वो टच करता है। तो जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, यानी कि जो हमारे लेटर्स हैं A to Z, उसमें से सिर्फ 5 वॉल्स होते हैं। कौन कौन से? A, E, I, O, U. All these 5 vowels are make English language very interesting. How's it? जब भी कोई स्पेलिंग होती है, कोई भी स्पेलिंग है, उसमें एक ना एक वॉल ज़रूर आता है। कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की स्पेलिंग्स बहुत कम होती हैं। स्पेलिंग्स को अगर हमें प्रोनाउंस करना है तो उसके लिए वॉल्स की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है प्रॉपर वे की प्रोनाउंसिएशन में। सो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ वॉल साउंड्स? व्हेन वी स्पीक दीज साउंड्स, आवर वोकल कॉर्ड इज लेफ्ट ओपन। हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो ओपन रहता है, और ये सबको यानी A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी लेटर्स बच जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिनको बोलते वक्त हम अपने लिप्स, अपने टीथ, अपने टंग और एयर पैसेज सबका यूज़ करते हैं। कभी कभी नेजल्स का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप यू इट्स वेरी क्लियर टू यू। सो इन शॉर्ट वी कैन से A, E, I, O, U, these are vowel sounds. Okay, and except these 5 sounds, whatever is remaining like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. ये जितने भी साउंड्स हैं ये हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ एक और स्पेशल बात होती है। कॉन्सोनेंट्स, 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स मिलकर कॉन्सोनेंट्स डायग्राफ बनाते हैं। ये क्या होते हैं डायग्राफ्स? डायग्राफ्स मीन्स वो 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स मिलकर एक तीसरा साउंड क्रिएट करते हैं। कैसे? जैसे कि मैं बोलूँ P प साउंड, H ह साउंड। P और H मिलके फ साउंड बनाते हैं। यस, लाइक मोबाइल फोन, PHONE. वी कांट से प ह होन, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फोन, क्योंकि P और H 2 कॉन्सोनेंट्स मिलके फ साउंड बना रहे हैं। इन द सेम वे T, कॉन्सोनेंट T और कॉन्सोनेंट H मिलके 2 साउंड्स निकालते हैं। फर्स्ट टाइम ये थ साउंड होता है और सेकेंड टाइम में द साउंड होता है। थ साउंड लाइक थिंक एंड थैंक यू, यस, एंड द साउंड में मदर और वेदर, यस। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होते हैं, जो 2 कॉन्सोनेंट साउंड मिलकर एक तीसरा साउंड क्रिएट करते हैं। एक और एग्जांपल से समझे, C और H, यस, C और H मिलकर च साउंड बनाते हैं। और च साउंड कैसे वर्क करता है? लाइक आपने वर्ड सुने होंगे चेयर, यस, CHAIR। वर्ड हो गया चिमनी, CHIMNEY। और अगर हम बोले चीज, CHEESE, तो C और H मिलकर च साउंड बनाते हैं। तो इसी तरह कई सारे डायग्राफ्स हैं, वो तो आप पढ़ते वक्त, लिखते वक्त और बोलते वक्त हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका एक सिंपल इंट्रोडक्शन हुआ जिसमें हमने फोनिक साउंड समझा, साथ में कितने लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, इनमें डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने समझा कि व्हाट इज़ वॉल साउंड, व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स, और हमने फिर लास्ट में समझा कि कॉन्सोनेंट्स डायग्राफ्स क्या होते हैं। अब सिंपल सा एक वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन कि ये जितने लेटर्स हैं इनको हम प्लस करते हैं, यानी G प्लस O, यानी कि दोनों को मिलाकर हम एक वर्ड बनाते हैं गो। और गो, आई, प्ले, ऐसे कई सारे वर्ड्स को अगर हम मीनिंगफुल वे में अरेंज करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि सेंटेंसेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो दैट इज रॉन्ग, इट्स नॉट करेक्ट। सेंटेंसेस आर नॉट ग्रुप ऑफ वर्ड्स। व्हाई? ठीक है, चलिए सोचिए, गो, प्ले, वी, फुटबॉल, आर, ये कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। क्या ये सेंटेंस बन रहे हैं? नहीं। जब हम इनको प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे, वी आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल, देन इट विल मेक सेंटेंस, यस। और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस ही फ्रेम करने के बाद वी आर एबल टू स्पीक एनी लैंग्वेज, and then after it make a broader structure of language. So I hope you understand. Day 1 में थोड़ा कम पढ़ा है, थोड़ा कम समझा है, थोड़ा कम सीखा है,
बट डे 2 से हम रेगुलर करेंगे क्योंकि डे 1 में इंट्रोडक्टरी पोर्शन थोड़ा सा लंबा हो गया है और इससे ज़्यादा लंबा करने पर हमारा जो वीडियो है थोड़ा और बड़ा हो जाएगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेच माई वीडियो वेरी मच. जस्ट ट्राई टू फोकस वट एवर आई हैव टोल्ड यू. जो भी मैंने आज बताया है, जो भी मैंने आज समझाया है, उसे समझने की और एक बार हल्का सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे. कुछ छूट गया है या कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन रिप्ले दिस वीडियो. आई होप you will understand it. We will meet you in the next video, day 2 class. And if you want to continue learning with me, then please share and subscribe. We will meet you in the next video. Till then, just take care of yourself. Bye bye.